All of you probably seen his speeches many times as well. He is a four-time member of parliament. He's been an MLA twice before he became MP, and he is the chief of AIMIM. I think these are things we know about him already. Something that probably I'd like to highlight is that also he's received the Sansad Ratna Award in 2013-14. Which is given to parliamentarians who are effective. And just one of the data points is that he asked 1,008 questions as a member of parliament in that term, when the average was around 290 questions at that time. And the reason I think this sticks out to me is that because when I look at him, what I really appreciate, what I would like to learn from him is the ability to ask questions. Because when we talk of the good politician, एक जो quality हमें आती है कि सवाल अच्छे पूछ सके, accountability कैसे हम अपने आसपास वाले लोगों को और खुद को भी रख सके accountable. So that's just something I really appreciate. And the other thing I think personally for me, his speeches, the way he talks is something that I really learn a lot from. They are data, they are emotion driven. He knows the pulse of the people, and these are really things I hope we learn from him. So, a quick introduction about the cohort is that we're a group of 40 people from 14 different states. Program का नाम है The Good Politician. It's a 9-month program. It's like a political incubator. हम 3 बार अलग-अलग हिस्सों में मिलेंगे देश के. So this is the first time we're meeting. It's the first cohort as well in Delhi, and we go to Punjab tomorrow. We'll meet in Jan in western part, and in May we'll be in southern part of the country. In a cohort of 40, we have 20 women as well. We have people from different religions, castes, almost equal representation from rural, urban, and semi-urban areas. Hindi and English हम mix करके तो अच्छा होगा. Also something about the audience is that these are people, some of them have contested elections already. Some of them are position holders currently at a village or a city level. The position holders in their political parties. One thing, yes, that they're non-partisan organizations. So we do have people from very different political parties and different political things. And the other topic that we're excited to speak to you about is the role of a strong opposition in India today. That what is its role, what is the role of a good opposition in Indian democracy? But I know कि सबको काफी questions से set questions तैयार रखने हैं सबने. So we are excited. So it would be great if we just do maybe a 20 to 30 minute chat and then open it up for questions. Does that work? Does that work for everyone? आपके लिए सबके लिए चलेगा. मैं पहले से हम सवाल से पूछे हैं. Would you like to hear opening remarks? Otherwise, we have a translation. Thank you very much for inviting me. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी. और it is a great honor that I'm meeting grassroots politicians जो ज़मीन से आपका ताल्लुक है. और मेरी किस्मत में ये नहीं था कि मैं इस तरह से नीचे से ऊपर जाऊँ. मगर anyway, now in politics for whatever reasons. आज का जो टॉपिक है कि रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, तो मेरा मानना ये है कि मैं तो हमेशा अपोजिशन में रहने वाला हूँ जब तक पॉलिटिक्स में रहूँगा. I will always be in opposition. That we can call me an opposition in perpetuity. And I'm fine with it. मेरे लिए उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. ना मेरी कोई सी तमन्ना है कि मैं आगे जाकर कोई मिनिस्टर बन जाऊं या कुछ बन जाऊं. क्योंकि एक तो मुझे मालूम कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स की रियलिटी क्या है, वो द लिमिट्स ऑफ प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल लाइफ. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हर पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी है
जो मेरी पर्सनल राय है कि आपको हमेशा, आप जहां कहीं भी रहे, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक हो, आप संविधान को बचा के रखें और संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करने का, और द एडवांटेज ऑफ दैट इज दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द पावर टू आस्क boldly questions related to the common man of our country, and that in itself will make you an effective opposition. So, पहली बात तो यह है कि all of you should be, should know some important fundamental rights of the Constitution. I am sure that you are more knowledgeable than me, but as I have been invited, मुझे आपने बुलाया बोलने के लिए कि effective opposition के लिए जरूरी है कि आपको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए और खास तौर पर फंडामेंटल राइट्स के, सेंटर और स्टेट रिलेशन के, और स्टेट लिस्ट में क्या आता, सेंट्रल लिस्ट में क्या आता, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता। दूसरी बात यह है कि जब कोई किसी पार्टी की सरकार होती है तो यकीनन अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। The importance of opposition increases if they not only oppose the ruling party's unconstitutional methods or laws which they are making, but to back it up with good arguments. अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको आपको थोड़ा स्टडी करके संविधान क्या कहता है और ये उनकी सरकार को गलत कर रही है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में, इवन इफ यू आर सपोर्टिंग वन पार्टी इन कोलिशन, then you must have that integrity to oppose the party in power even when you're supporting them. For example, when I was supporting the UPA in my first term as a member of parliament, मेरा पहला टर्म था पार्लियामेंट का, तो 2008 में शायद यूएपीए का अमेंडमेंट का बिल लाया गया। मैं उठकर उस बिल का अपोज किया, अमेंडमेंट दिया, और काफी लोग तनकीद किए, क्रिटिसाइज मी दैट यू आर पार्ट ऑफ यूपीए एंड यू आर स्टिल criticizing and voting against the UAP amendment bill, which was brought by Mr. Chidambaram, who was then the Home Minister of the state. तो ये जरूरी है ताकि लोगों में आपका एक एतमाद पैदा हो। People have, when they look at you, when they look at your party, no matter you might not be having great number of MPs, but then again it is very important because people voted for you on some basis कि भाई ठीक है ये हमारी आवाज बनेगा और हमारे खिलाफ उठेगा। तो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जिला परिषद हो या पंचायत हो, वहां पर अगर गलत काम होगा तो गलत कहेगा। चौथी बात यह है कि एक बात आप लोग बेहतर जानते हैं कि अक्सर अपोजिशन पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो बहुत बोलते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके उल्टा काम करते हैं। ये भारत की हमारे मुल्क की सियासत की, पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी बीमारी है कि जब अपोजिशन में रहते हैं तो बहुत बोलेंगे, और जैसा ही सत्ता में आ जाते हैं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर कल आज जितने लोग फार्म लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ये 370 के खिलाफ है या आज पहले के यूएपीए के खिलाफ है, वो ये नहीं कहता कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो निकाल देंगे, अभी अपोज कर रहे हैं। मगर कल अगर जनता उनको बोली ठीक है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट खराब है, अब आपको मौका देते हैं, वो फिर सब चीजों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए अपोजिशन की जो अहमियत है वो देश में दिन ब दिन कम होते जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है किसान आंदोलन, फार्मर्स प्रोटेस्टिंग फॉर nearly 1 year, CAA protest, whether it is Shaheen Bagh or throughout India, these are two important protests। ये दो अहम प्रोटेस्ट हैं जो इस बात की तरफ आप तमाम को, क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह कल आगे बढ़कर
हो सकता है कि इसमें कोई मिनिस्टर बने, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए। मगर एक बात याद रखिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। और why it is defining moment? Because these protests sends a message to politicians like me that we don't have that confidence in you, and that is why we have come out on the street. CAA का प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि लोग समझे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देती है, हम लोग निकलेंगे। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं हो या बाद में तमाम महिला आके बैठी, क्योंकि उनको एक बात मान लो कि व्यक्ति हेल्प नहीं करेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो। पीपल कम आउट ऑन स्ट्रीट्स and start protesting and losing confidence in the political party, that is very dangerous. ये अनार्की की तरफ नहीं जा सकता। मैं कोई फार्मर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मगर कि ये हमारी गलती है एज अ पॉलिटिशियन, अपोजिशन पार्टीज की, हमने उनकी आवाज को हमने समझा नहीं। जो हमको जिस ताकत से बोलना था, जिस ताकत से प्रोटेस्ट करना था, वो हम नहीं कर पाए। और एक छिपी बात ये है कि कोई रूलिंग पार्टी है तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि आप में उनमें फर्क है। जैसा कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, आइडियोलॉजिकली रीजंस के लिए खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी का ताल्लुक आरएसएस से है और मेरा एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। मगर यहाँ पर क्या होता कि बीजेपी को हराने के लिए अब सब लोग बीजेपी की तरह हो गए, तो फिर आप किसको वोट डालेंगे? अगर आप बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाह रहे तो आपको कुछ फर्क तो दिखना चाहिए ना। एक तरफ सफेद है, एक तरफ अगर लाल है, तो आप तो देखेंगे सफेद और लाल में कोई फर्क ही नहीं है, किसको वोट डालेंगे? तो वो बहुत बड़ी गलती आज के अपोजिशन पार्टीज में है, जो इसीलिए बीजेपी को हमेशा फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उत्तराखंड जाकर कह दिया कि मैं उसको पूरे विश्व का हिंदू कैपिटल बनाऊं। ठीक है, हिंदुओं की आस्था है, वहां धाम है, सब नहीं मानता हूं, मगर बीजेपी ये कहेगी कि पूरे भारत को हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो आप यही तो खेल खेल रहे हैं आप लोग, ये तो इससे आप तो बीजेपी को कमजोर करने के लिए उनको तो आप और ताकत कर रहे हैं। और इसका नतीजा देखिए आपने कि गुजरात में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, उनका नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहूंगा। वो गुजरात चले गए, मंदिर भागना शुरू कर दिया। तो वहां का जो सेक्युलर हिंदू भी जो था, जो मंदिर जाने वाला है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या हो रहा है, तो हमको फर्क ही नहीं मालूम हो रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकला, बीजेपी को फायदा हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि आपको समझने की जरूरत है कि इस मुल्क की डाइवर्सिटी क्या है। ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं है, बल्कि 2011 का जो सेंसस है, अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, इट सेज दैट इन इंडिया वी हैव सम 1500 रिलीजन्स एंड 1700 लैंग्वेजेस आर स्पोकन। बहुत बड़ा ये इस तरह की डाइवर्सिटी पूरे विश्व में, पूरी इन द होल वर्ल्ड, नो कंट्री कैन शो सच डाइवर्सिटी। So that is what I feel that the opposition should always remember in mind. For example, दिल्ली में एक बच्चा था आमिर खान, उसको झूठे केस में डाल दिया गया, 14 साल जेल में रहा। आमिर खान, आप जाके पूछे किसी कांग्रेस के या आप पार्टी से जो मेन अपोजिशन पार्टी यहाँ पर कोई, आप जानते हैं आमिर खान कौन था? तो बोलेंगे हाँ वो हिंदी एक्टर है, बहुत बड़ा। इनको मालूम ही नहीं, अगर मालूम हो तो बोलेंगे नहीं। तो ये इस चीजों का आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि एज अपोजिशन आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर आपको पूरा कमांड रहना चाहिए, और आपका बार बार हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि अगर आप एमएलए हैं तो वहां की सरकार एक फिक्स नंबर, कम से कम साल में 100 दिन असेंबली चलाए, 100 दिन पार्लियामेंट चले। मगर अब जो प्रेजेंट सरकार है, भारत सरकार, वो तो पार्लियामेंट तो छोड़ो, अब तो पार्लियामेंट में दिन में वो लोग बिल पास करा देंगे, एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन बिल पास हो गया। मगर ये क्यों हुआ? यहाँ पर आप देखिए कि अभी जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ, जो बड़ा मीडिया सेड पीपल क्रिटिसाइज पार्लियामेंट डिड वर्क, बट अगेन वी हैड गिवन अ एडवांटेज टू बीजेपी। इन राज्यसभा द ऑपोजिशन अलाउड द कोविड डिस्कशन टू टेक प्लेस, इन लोकसभा बिल डालो, बोले नहीं होगा।
उसमें फायदा तो सरकार का हो गया। अगर दोनों हाउस में कोविड के ऊपर बहस होती है और सब लोग बोलते हैं कि भाई कैपिटल दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिला तो बिहार के सीमांचल के गांव में क्या हाल हुआ होगा, हमने बीजेपी को छोड़ दिया, आप वहां डिबेट कराए। फिर दूसरा ओबीसी का अमेंडमेंट का बिल आया तो सब बोले खराब डिस्कशन, ये क्यों कराने दिया, क्योंकि वोट की जरूरत है ओबीसी की। तो भारत की डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी या फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट वर्क ओनली फॉर वोट्स, इट आल्सो वर्क्स फॉर डेवलपमेंट, इट आल्सो बिगेस्ट demand for elected representatives that when we go to parliament we ask questions from the government, हम उसको political nature का करके ये भी ये बहुत बड़ा आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। फिर अगर आप एमएलए है, यहाँ पर कोई एमएलए है तो आपके पास उस विधानसभा की that particular assembly must be having various house committees, you must be well versed in the laws and use house committee properly. For example, in my fourth term as an MP, I was a member of Defence Standing Committee, Ministry of Social Justice, and now presently Science, Technology, Environment and Forest. The reason I am saying is that not only participating in the proceedings of the Assembly or Parliament, but the Standing Committee is very important. Recently, I can give you an example. एक मिसाल दे रहा हूँ कि DNA बिल हमारे स्टैंडिंग कमेटी को आया, बहुत उस पर डिबेट हुई, बहुत मैं गड़बड़ किया और उसमें मैंने बताया कि ये डीएनए बिल अगर पास होगा बगैर डेटा प्रोटेक्शन बिल के तो इससे मुसलमान, आदिवासियों का और दलितों का प्रोफाइलिंग होगा, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। बहुत मीटिंग हुई, बहुत गड़बड़ हुई, जयराम रमेश हमारे चेयरमैन है, तो मैंने डिसेंट नोट लिख कर दिया कि ये मेरा डिसेंट नोट, फिर वो आप देख सकते पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाकर के वो डिसेंट नोट आ जाता है, कम से कम हमारी बात तो आ गई उसमें, कल इसका कुछ उठेगा। फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालिए, असेंबली में हम डालिए क्वेश्चन, चाहे आप रूलिंग पार्टी को ना हो, क्वेश्चन डालिए। इफेक्टिव अपोजिशन खाली चीख मारने से, संसद को बंद करने से सरकार का फायदा होता है, संसद को चलाने से सरकार डरती है, कोई भी सरकार। मिसाल के तौर पर मैंने क्वेश्चन डाला पेगासस के ऊपर पिछले सेशन में, उसका जवाब आया, उस जवाब को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यूज किया। एसओजी ओवैसी ने पेगासस पे क्वेश्चन डाला था और वो सुप्रीम कोर्ट में उसको पूछा गया। आरटीआई का तो एक्सपर्ट है, आप लोग आरटीआई डालते रहना चाहिए हम लोग, क्योंकि सरकार आजकल सवाल जवाब देने में डरती है इफेक्टिव अपोजिशन के लिए। तो इसमें और आखिरी बात यह है कि देखिए जमहूरियत और संविधान को, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को इफ यू वांट टू सेव, you have to save it from authoritarianism. If authoritarianism is not controlled, then it is dangerous for a democracy. Unfortunately, in my opinion, this country has become very authoritarianism, और सब लोग उसको खत्म करने के बजाय, उसको कम करने के बजाय जो है सब लोग उसको और प्रमोट कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले, दलित और आदिवासी से ताल्लुक रखने वाले कोई पॉलिटिशियन, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बगैर डरे अपनी बात को रखने जाइए, क्योंकि इस मुल्क में इन तीन लोगों की, माइनॉरिटीज, दलित और आदिवासी को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुनने तैयार नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको, अगर आप ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियन हैं तो अपनी आवाज को उठाइए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को, पार्लियामेंट के, असेंबली के रूल्स को इस्तेमाल करिए और बेखौफ होकर ये कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी है, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, दिस प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, everyone is doing a drama as far as empowerment of minorities, Dalits and Adivasis are concerned, and especially Adivasis and Dalits are feeling that they have become powerless, which is very true. So that is why this is very important कि आप इन चीजों पर गौर करें। ये ब्रीफ था, मैं अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए, ये जो दिमाग में थी, जो मैं तैयारी किया वो आपके सामने रखा।
पूछ रहे हैं उनका आंसर पहला प्रश्न इसमें देंगे। मैं तारापति झारखंड से हूँ। आपने अंतिम में बताया कि जो अल्पसंख्यक है और आदिवासी दलितों के फोटो पर आपने बात करने को कहा, तो मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड में अधिकांश जो मॉब लिंचिंग हुए हैं मुस्लिम परिवारों पे हुए हैं और आदिवासी दलित परिवारों पे हुए हैं, और उसको लेके जब हम लोग फाइट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी जैसे आपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में भी बताया, संविधान को जोड़ के बताया, तो हम लोग उसके न्याय के लिए जाते हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं या किसी कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसमें कुछ अभी तक निर्णय हो नहीं पाता है। और हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि उनके राइट्स का वायलेंसेस में यहाँ तक कि लिंचिंग भी हो चुकी है। तो उस पर मैं आपसे ब्रीफली जानना चाहूँगी। नहीं तो आप तो हाईकोर्ट में गए, बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि वो आपका राइट है। मगर सिर्फ हाईकोर्ट में जाकर आप खामोश नहीं बैठ सकते। आपको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जब कभी भी अगर 6 महीने हुआ, 1 साल हुआ, आपको उस दिन को याद रखना पड़ेगा, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, आपको अपनी बात को बोलते रहना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और वो जो एरिया का अगर विधायक है या सांसद है उसको अगर मिल नहीं सकते तो कम से कम उसको लेटर लिखकर मीडिया में डालना चाहिए। उस इश्यू को जितना हो सके जिंदा रखने से ही इंसाफ मिलता है। हमारे मुल्क में क्या है कि अगर एक बार कोई भूल गया तो भूल गया, तो भूलने देना चाहिए, इसको जिंदा रखना चाहिए। अभी देखो आप, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा में 26 साल लगे इंसाफ में, मगर थोड़ा बहुत आप अगर कोई किसी से पूछो उत्तर प्रदेश में कि भाई हाशिमपुरा तुमको याद है, तुमको 1980 का मुरादाबाद का ईदगाह का कांड याद है, तो बोलेगा क्या है जुल्म। तो ये बहुत जरूरी है इस समाज के लिए कि वो इन एट्रोसिटीज को हमेशा खुद याद रखें और दुनिया को याद दिलाते रहें, क्योंकि जब आप याद दिलाएंगे, वो जो लोग जो ये हरकत किए हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, ये क्यों तुम याद रख रहे। इनका एक जवाब होता है, आपको मिला होगा, अरे आगे बढ़ो ना, आगे देखो ना, कब तक तुम पुरानी हो जाते। आगे बढ़ने के लिए इंसाफ तो जरूरी है ना। इंसाफ जब होगा तो जब ही तो आगे बढ़ेंगे। अगर तुम सबको ऐसा ही कचरे को तुम या नाइंसाफी को बोलेंगे नहीं, नाइंसाफी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इंसाफ होगा तो आगे बढ़ सकते। तो ये इसको जिंदा रखने की जरूरत है। इसीलिए लोग जैसा मुझे बदनाम पे तो हमेशा तुम बाबरी मस्जिद बोलते हो ना, बोलता रहूंगा, नासिक में बोलता रहूंगा, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी बोलूंगा कि बोलना चाहिए। तो नाइंसाफी को सबसे बड़ी नाइंसाफी से कि आप उसको भूल जाए, भूलिए मत, उसको याद रखिए और डेमोक्रेसी में जो जो एवेन्यूज है उसको इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब को आदाब। मैं गणेश रवि हूँ और झारखंड से हूँ। तो ओवैसी साहब सबसे पहले बताएं कि आप अपने मूल्यों पर चुके हैं। एक सवाल था कि जब आप जब ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक पार्टी AIMM का जब गठन करते हैं तो आपके सामने केवल मुस्लिम होते हैं या पूरा देश होगा? एक सवाल तो ये था। दूसरी सवाल थी कि आपने एक नए एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र से किए हैं, जय भीम और जय भीम, उससे हम रिजल्ट करना चाहते हैं। और तीसरा यह सवाल था कि आप पूरे देश को देख रहे हैं या केवल विपक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहने से ही समस्या का समाधान है, कहीं न कहीं पक्ष में कुछ जाना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, अगर आप लोग ये आप क्या है, अभी आप पॉलिटिक्स में हैं, क्या है? कांग्रेस पार्टी। नहीं, आपका पोस्ट खाली है, कोई MLA है, MP है, या तो आपका MLA बनने का शौक है। तो एक बात याद रखिए कि ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, मेरी राय, हमारी पॉलिटिक्स में जो दीमक आज लगी है ना, वो दीमक को अगर रोकना है तो ये जो आपका तीसरा सवाल है कि विपक्ष में ही रहेंगे तो क्या फायदा। तो ये फायदे के लिए पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? आप जनता का फायदा करेंगे ना, 90% करिए, 10% अपना भी करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर फायदा क्या है विपक्ष में रहने का? तो पॉलिटिक्स में मत आइए।
और मैं जिस समाज से आता हूं, मुझे तो लड़ना मेरे मुकद्दर में लिखा है। अगर जिस दिन मैं लड़ना छोड़ दूंगा और अपोजिशन करना छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे ये लोग तो बिल्कुल ही एक पानी की तरह बहा कर छोड़ देंगे मुझे। तो पॉलिटिक्स में आप आ रहे हैं तो ठीक है, मैं जानता हूं कि आजकल आइडियल्स नहीं है, मगर कुछ तो जमीन जिंदा रहना चाहिए थोड़ा। तो विपक्ष करने से कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष में रहेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल करियर होगा। अगर आप सब लोग जाकर अगर बोलेंगे नहीं भाई हम जाकर मिल जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि फिर आपका जो मकसद है, इसीलिए देखिए कितने लोग इलेक्शन हारते हैं पार्लियामेंट में। 60% लोग हारते हैं इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन। रिटेन नहीं जीतता क्योंकि उनको फायदा हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है कि आप सत्ता में भी रहे तो भी अपना अपोजिशन करते रहिए। हमारा मानना है कि हमको सब शुरू में कहा कि हमको मेरा मकसद नहीं है कि मंत्री बने। मेरा मकसद ये है कि जो मैं जिसके लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं उनको फायदा मिले। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना, पहले आंध्र था, तेलंगाना हो गया, हम लोग काम किए, हम विपक्ष में रहे, हम लोग कोई मंत्री नहीं बने, ना कोई बनेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं किसी को अपनी पार्टी के लोगों को बनने नहीं दूंगा, क्योंकि तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती फ्री में, क्लास 6 से क्लास 12। वो हमने सरकार से लड़के कराया पूरे। अभी उसके लिए कंपटीशन होता है, एग्जाम होता है। ये काम हुआ, अगर वो मंत्री बन जाता तो बोलते हैं बन गए तो मंत्री तुम गाड़ी में फिरो। और आपका दूसरा सवाल क्या था कि पहला सवाल था कि AIMIM का, देखिए इलेक्शन कमीशन में जब पार्टी रजिस्टर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लॉ में इट इज रिटन दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। When I accept the Indian Constitution and I have to abide by the People's Representation Act, so I cannot say that I will only aspire to work for one particular section of group of society. Thirdly, yes, we want to take forward, हम अपनी पार्टी के पैगाम को, अपनी पार्टी को फैलाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमको कामयाबी मिली 5 सीटों पर, झारखंड में उभरे थे पिछले बार, ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो पहला इलेक्शन देखिए काशीनाथ अच्छा कहा था कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो हम लोग पहला इलेक्शन हार गए और हो सकता है कि बिहार में तो हम जीत भी गए दूसरी मरतबा। तो लड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ, एक बात का अगर आप अपोजिशन से रूलिंग पार्टी में रहते हैं, एक फायदा जरूर होता है, आपको पैसे बहुत मिलते हैं। और ये बिल्कुल रियलिटी है। भारत की डेमोक्रेसी की सबसे गंदी हकीकत ये है कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। और अगर कोई आदमी कितना भी अच्छा होगा, वो एरिया में सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है ये, इसको टिकट दो, तो पार्टी क्या बोल कितना खर्चा करेगा। जैसा कोई मोटरसाइकिल गाड़ी लेता तो लेते हैं कितना देती है लेकर, वो हाल हो चुका है हमारे डेमोक्रेसी का। ये बर्बाद कर देगा हमारे मुल्क को। इसीलिए क्या हो रहा है कि जनता तक आ जाती है, 50% लोग हारते हैं। हाँ, आप अपोजिशन को रूलिंग पार्टी में आ जाइए, बहुत पैसा आ जाएगा और हो सकता है कि शायद इलेक्शन में आपको उसका फायदा ही मिल जाए। तो इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी की एक और गंदगी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो बीफॉर्म देती और पैसा देती। तो अब क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसा नहीं है, तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े दौलतमंद उसको बुलाते तो आ जाओ। अब वो आकर अगर खर्चा करेगा एक असेंबली के चुनाव में, फर्ज करिए 6 करोड़ 7 करोड़, मैं तो कैरियर पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो फर्जों में आ जाऊंगा, मैं आया भी हूँ कई मरतबा, परेशानी तो आती। तो ये बहुत डेंजरस है। और इस सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लगा दिया। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पता सिर्फ मोदी जी को मालूम होता और अल्लाह को मालूम होता है, आपको नहीं मालूम होता कौन इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। तो ये मेरा जवाब है आपके सवाल। हाँ नहीं, देखिए जय भीम का तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अलायंस किया था,
अफसोस के वो हम असेंबली चुनाव नहीं करा सके, बट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो वंचित समाज है उनको एक जगह जमा होना ही पड़ेगा एक दिन, आज नहीं तो कल, मेरी जिंदगी नहीं तो मेरी जिंदगी बाद में, क्योंकि जब तक ये समाज एक जगह पॉलिटिकली जमा नहीं होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही कहा था कि अगर कोई आपके पास आपकी ताकत होगी तभी तो ताले खुलेंगे, और ताले खोलने के लिए आपको बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हाँ नहीं, ये तो लोगों ने कहा कि दलित समाज को जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में। बाबा साहब ने बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बाबा साहब ने कहा जहाँ जीत के जाते हैं मगर मुंह कब खोलते हैं जब उनको अकड़ाई आती है। तो वो भी देखना पड़ेगा आपको, अगर कोई समाज जाता भी है तो वो जाकर गुंगा ना बन जाए, वो जाकर अपस्टैंड ना बने, बल्कि वो ताकत से अपनी बात रखें जो अभी नहीं है। मैं देवेंद्र कोटा राजस्थान से मैं आपका प्रशंसक हूँ और विशेष करके संविधान पे जो आपकी राय में डिबेट्स में और जो देखता हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन मुझे कभी एक कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती उसके बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले भी जस्ट बोला कि दलितों को दलित की आवाज़ उठानी चाहिए, आदिवासी को आदिवासी की आवाज़ उठानी चाहिए, मुस्लिम को मुस्लिम की आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एक आया कास्ट आता हूँ और मेरे समाजों से लड़ाई होती है। मैं देवेंद्र खान करार दिया जाता हूँ, मुझे देवेंद्र घेरवा, देवेंद्र मेवाड़ एसटी का नाम दिया जाता है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं समाज के खिलाफ बोल के मैं दूसरे लोगों का साथ दे रहा हूँ? तो क्या हम ऐसी नए पॉलिटिशियन तैयार नहीं करें जो दलित आदिवासी ये भेद मुस्लिम का ये भेद मिटा के केवल भारतीय के लिए बात करें और भारतीय के लिए ही काम करें? ये बहुत अच्छी बात है, मगर रियलिटी में तो होता नहीं ना कुछ। देखिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या है, आपने पढ़ा उसको? उसमें लिखा है कि भारत इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन की जब बात होगी तो सेंटर नहीं होगा, यूनियन होगा। तो यूनियन में जबानें भी आएंगी, मजहब रिलीजन्स आएंगे, वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करना है ना। भारत की जो खूबसूरती है, ताकत है, उसकी डाइवर्सिटी है। और मेरा मानना यह है कि अगर ये वंचित समाज एक होकर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे बढ़ाएगा और जीतेगा तो भारत की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। भारत कमजोर नहीं होगा इससे। भाई, अगर पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो हर समाज का कोई ना कोई जीत के जाता है। अभी रिसेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपका सवाल था ना कि अगर हम भारत की बात को ना करें तो फिर मोदी जी ने अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया, और आपने हमारे बाघेल साहब जो आगरा के एमपी उनको क्यों बनाया? आप खुद तो बना रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं? कि उस समाज की आवाज आए, उस समाज को वोट हमको मिले, तो मत बनाइए आप। मगर आपको बनाना पड़ता है क्योंकि आपको उनकी वोट की जरूरत है। तो ये तो सब पार्टीज करती है, वो जहां पर दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज का मामला आता, ये लोग उतना एग्रेसिवली नहीं जाते। उनको लगता है कि इनको कमजोरी लोगों के कहाँ जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर खासतौर से मुसलमानों के बारे में, अरे कहाँ जाएंगे, कांग्रेस और सेक्युलर पार्टी मुझे कहाँ जाएंगे लोग, ये तो हम हमारे तरफ ही फिर करा के आएंगे। तो जब मैं औरंगाबाद में आज से 2012 की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद गया था, तो वहां पर बड़े हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोगों ने मुझे बुलाया एक जगह पर और कहा कि आप मत आइए, आप इलेक्शन मत करिए, यहाँ पर कम्युनल पार्टीज को फायदा हो जाएगा। ये हमारे बहुत मुझे बड़े बड़े लोग थे, तो उसमें बड़े हमारे जिम्मेदार लोग थे। मैंने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। तो बोले हाँ, इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। तो बोले, मैं बोला कि सियासी खुदकुशी करना तो हराम नहीं है। तो बोले हाँ, वो कर सकते, मतलब वो कर रहा हूँ। मतलब जिसमें फिजिकली खुदकुशी तो नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकली कर रहा हूँ, तो आपको तकलीफ क्या है? तो ये मेरा मानना है कि जरूरी है। और आपको मालूम अम्बेडकर बाबा साहब का इलेक्शन क्यों हराया गया?
क्योंकि बाबा साहब ने एक मरतबा कहा था, कश्मीर के बारे में कहा था, सब एक हो गए उस जमाने में, बोले वो कश्मीर के बारे में बाबा साहब ने कहा था। तो ये तो उस जमाने चल रहा था। अगर ठीक हो जाता तो फिर इतनी मुश्किलात क्यों होती? तो इसलिए भारत की जो डेमोक्रेसी की एक रियलिटी है, जिसको मेरा मानना ये है कि जिसके पास उस कम्युनिटी के इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस होगी, तभी उसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स को वो सरकार हल करती, वरना तो ऐसा ही बाजू रख के मामला चलता है। इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी, मेरा मानना है। मैं शीतल चौधरी गुजरात से। आप बैठिए। मैं शीतल चौधरी गुजरात से। आप एक ऑपोजिशन लीडर हैं, तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कर रही हूँ। सर, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, मैं एक्चुअली आपको बहुत उसके लिए क्वेश्चन कर रही हूँ। तो और आपने ये भी बोला कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो मतलब आप बीजेपी पार्टी के खिलाफ है। तो सर, जब भी आप कैंपेन करते हैं, आपकी स्पीच होती है, तो उससे फायदा बीजेपी को मिलता है। दूसरी बात, गुजरात में भी फरवरी मार्च में कॉर्पोरेशन और पंचायत के चुनाव हुए, तो आप आए थे। तो सर, उसी इलेक्शन में भी मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेशन या पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें लोकल लीडर काफी होते हैं, मतलब स्टेट लेवल के या लोकल लीडर। तो एक नेशनल लेवल के लीडर को पंचायत या कॉर्पोरेशन चुनाव में कैंपेन के लिए आना और मतलब वो भी फायदा बीजेपी को ही होता है। तो सर, आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये एक क्या बोलते हैं हिंदी का वर्ड हम बोलते हैं, वो है कि ये झूठ है कि मेरी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। पहली बात आपको समझने की बहुत जरूरी है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मैं सिर्फ 3 लोकसभा सीट लड़ा, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज बिहार में। हैदराबाद में हमने बीजेपी को हराया 2 लाख वोट से। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, जहां पर 21 साल से शिवसेना का एमपी था, वहां पर इम्तियाज जलील हमारे कैंडिडेट ने उनको 10,000 वोट से हराया। तीसरा किशनगंज बिहार सीमांचल का सबसे बैकवर्ड एरिया, वहां पर हमारे कैंडिडेट अख्तर ईमान ने 3 लाख वोट लेकर आया, तीसरे नंबर पर आया। दूसरे नंबर पर जेडीयू का 3,25,000 लाया, और जो कांग्रेस के साथी सांसद हैं वो 3,50,000 लाया। अगर वो 3 लाख वोट नहीं लाते तो जेडीयू का जीत जाता ना। ये कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हमको इनसे फायदा हुआ। तो 3 सीट लड़ने से भी मोदी को 306 आए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। चलिए, अगर मैं 10-15 लड़ता और बोलते कि भाई इनके लड़ने से फायदा हुआ, तो कांग्रेस के सेक्युलर पार्टी बोलते हाँ तुम 3 लड़े होगा, तुम्हारी जबान से बीजेपी को फायदा हो गया। तो मैं बोलता हूँ यार, फिर तुम कल बोलोगे कि तुम जिंदा रहोगे तो फायदा होगा, तुम बोलेगे मार उसको मार दो। तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। 3 सीट से अगर कोई 306 आता है तो उसका मतलब ये है कि वो ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा आप नहीं, वो लोग मेंटल है भाई, उनको अपनी कमजोरी दिख रही है। अगर उसको अकल होती तो वो उसकी गर्दन मोटी नहीं होती, झांकता अपने नीचे मुझमें गलती क्या है, मुझमें गलती क्या है कि एक आदमी 280 से 300 के ऊपर जा रहा है, तो क्या गलती है? तीसरी बात, दूसरा सवाल गुजरात का चुनाव का, लोकल बॉडी का, मैं अपने आप को कोई नेशनल लीडर नहीं मानता हूँ ना। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कोई अपने आप को बड़ा हम्बल मॉडल दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि चुनाव और मैं कोई नेशनल लीडर नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई होगी सोशल मीडिया से, टीवी पे, जो भी होगा, मगर चुनाव है तो मुझे जानना है। मैं पार्टी का एक जिम्मेदार हूँ, एमपी हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि हम हर एक को जाना चाहिए दिल्ली का। अब मैं 25 तारीख को जाऊँ गुलबर्गा में भी ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, बल्कि गुलबर्गा में मैं एक बार नहीं 3 बार जाने वाला हूँ। मैंने कहा मैं पब्लिक मीटिंग में करूंगा और रोज 1 घंटा उस वार्ड में पैदल फिरूंगा, मैं देखूंगा, लोगों से मुलाकात करूंगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिस दिन मैं ये समझूंगा कि नेशनल लीडर होगा, तो उस दिन मेरा पॉलिटिकल करियर डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा था कि गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव में आने से बीजेपी को फायदा होगा।
देखिए ये बात गलत है। गोधरा में हम कंटेस्ट किए, वहां पर हमारे 7 या 8 लोग जीते। वहां हमने बीजेपी को रोका और एक इंडिपेंडेंट हमारे हिंदू भाई को मेयर बने, हम लोग डिप्टी मेयर बने। अहमदाबाद में हम लोग 6 या 7 जीते, कांग्रेस को हराया हमने, वहां बीजेपी थी नहीं। तो अब दूसरी जगह बीजेपी जीत गई, अब उसका भी मेरे खाते में डाल देना तो ये गलत बात है। और तीसरी बात ये है कि अभी एक आसाम में कांग्रेस की लीडर टीएमसी में चले गई, कोई उसको उंगली नहीं उठाता। हमारे पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा बुरी बात क्या है कि अगर सबको लगता है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ना हो, जैसा कि मुझ पर इल्जाम लगता है कि ये बीजेपी का बी टीम है, ये वोट काटता है, मगर कोई ये बात यादव को नहीं बोलता। अगर यादव समाज ने बीजेपी को वोट किया तो उसको बी टीम नहीं बोलते। आरजेडी का वोट चला गया बीजेपी में बिहार में तो उसको बी टीम नहीं बोलते। तो ये आखिर सिर्फ एक मुस्लिम पॉलिटिशियन को ही बी टीम क्यों बोला जाता है? और ये क्यों समझते कि मुसलमान एक कैप्टिव है, किसी का हॉस्टेज है, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकता, वो किसी को और वोट नहीं डाल सकता। तो यही बात आप ब्राह्मण से कहिए, ठाकुर से कहिए, यादवों से कहिए, बनिया जो में उनसे कहिए, किसी नहीं बोलेंगे बी टीम, उनको कोई नहीं बोलेगा। किसको बोलेंगे? मुसलमान, अरे तुम्हारा वोट तो इसी काट देगा, ये बीजेपी ने खरीद लिया है। मैं पूछता हूँ भाई कितना खरीदेंगे? मेरे को 3 सीट के लिए कोई खरीदेगा? मेरे को बताइए। चलिए मैं बिकने का तैयार भी हूँ, तो क्या 3 सीट पे बोलेगा तो 25 सीट कर, 30 सीट कर। तो ये एक रियलिटी है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब कभी भी बात आएगी, पहली बार उनको याद दिलाएंगे पार्टीशन नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, कम्युनिज्म बढ़ेगा तुम्हारी वजह से, बीजेपी जीतेगी तुम्हारी वजह से। तो प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान को हमेशा इलेक्शन में जिंदगी मौत का इलेक्शन हुआ था। कभी एजुकेशन का इशू, कभी उसके इलाकों का डेवलपमेंट का इशू, स्कूल्स का इशू, बच्चे जेल में है क्यों है, वो इशू होता ही नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि भाई ये भी तो इशू है। अब कब तक मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा? अरे एक दिन तो मरना है ना। जो भी आया इस दुनिया में जाएगा, वो आज नहीं कल, वो ऊपर वाला जानते कब जाएगा, कोई तय नहीं कर। मगर जब तक हम जिंदा हैं, हमको ये नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा और ये डर की सियासत से निकलना पड़ेगा। अगर मैं डरता रहूंगा जीतेगी बीजेपी, तो भाई जनता जिसको जिता देगी, मैं जिता नहीं पाऊंगा। मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो हराऊंगा ना किसी को। मैं तो कोई एनजीओ नहीं हूं जिस तरह आप लोगों को बुलाए, लोग बुलाकर आपको करें। उनको अगर इलेक्शन लड़ना है तो उनको हराना पड़ेगा किसी को। अगर कल इलेक्शन लड़ेगी या वो लड़ेंगे तो उनको तो हराना पड़ेगा ना किसी को। इलेक्शन आप हराने के लिए लड़ते हैं ना, या आप खुद हारेंगे या किसी को हराएंगे आप। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान सिर्फ इलेक्शन वोट डालता रहे, सिर्फ वोट डालता रहे। वो एक एटीएम की मशीन है कि वो भी अपना कार्ड डालेगा और निकाल लेगा। हम बोलेंगे एटीएम नहीं, अब ये मामला बदलेगा। ये हमारा पैगाम है। और मुतमईन रहिए कि गुजरात में अब कल आप पार्टी निकाली, आपका सवाल आपसे नहीं हुआ था कभी? आपने क्यों जाकर आप पार्टी ने कांग्रेस को वोट काटा उनका? आपके दिमाग में बात बैठ गई मुसलमान के ताल्लुक से, आप पार्टी के बारे में नहीं गई। आप ही तो जीती सूरत में, वहां पर वो सवाल नहीं होता आप पार्टी से, अरे भाई तुमने क्यों वोट काट दिया? तो ये जो दिमागों में बात दिखाई जा रही है, हम उस दिमाग से बात को निकालना चाह रहे हैं। हम उस कम्युनिटी को बोलना चाह रहे हैं कि ये डर से निकलो। आपको जीत हार तो लिखी भी है। आपको मालूम कि आखिरी मरतबा गुजरात से मुस्लिम एमपी कब हुआ था? मरवा 1984 में। एक मुस्लिम एमपी नहीं, 84 से अब हम 2021 में आ गए। ये मैं जिम्मेदार हूं, यही तो बता रहे हैं आप। मेरा नाम मेहरुद्दीन है और मैं बिहार के किशनगंज से रहा हूँ। एक सिंपल सा मेरा 2-3 सवाल है, सवाल के अंदर सवाल है। ज़्यादातर सोशल मीडिया के जरिए से या और भी तरह से जो भी माध्यम है सुनते हैं कि
कुछ खास कम्युनिटी का नाम आप लेते हैं, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, और ऐसा नहीं है, धरातल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम, आदिवासी और दलित ही परेशान है। भारत में जितने भी जाति के लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या गांव में बसते हैं, जो जागरूक नहीं हैं, सब लोग परेशान हैं। तो क्या हम उन सबके लिए बात नहीं कर सकते कि जो भी परेशान है मैं उनके लिए हूँ, जो परेशान है मैं उनके लिए हूँ, चाहे वो पॉलिटिकली हो या और कोई भी वजह से, जो परेशान है मैं उनके लिए हूँ। और अगर इसी तरह का जैसे बीजेपी का बात होता है कि वो सिर्फ हिंदुत्व का बात करते हैं और मतलब तोड़ने का बात करते हैं, तो मेरे जहन में एक बात आता है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत सारे मुस्लिम नवाबों ने, राजाओं ने अपना घर बार, अपना सोना चांदी जितने भी दौलत थे सारे देश के नाम कर दिए। बहुतों में फांसी हो गई, बहुतों को, बहुत सारे हिंदू राजा भी उसमें मारे गए। मतलब हर कम्युनिटी के लोगों ने अपना खून बहाया और देश को आजादी दिया। उन लोगों ने क्या सोचा होगा देश का भविष्य के बारे में कि अपना सब कुछ लुटा दिया, जबकि वो लग्जरी लाइफ जी सकते थे। और आखिर में है कि पिछले बार उपचुनाव में कमरुल हज़ा साहब हमारे यहाँ कुछ महीनों के लिए इलेक्शन जीते थे, एमएलए वाले। हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उनको, बहुत ज्यादा, मतलब जो करना पड़ा हम लोगों ने किया। अंत में हमारा गांव कोठिया ब्लॉक में पड़ता है और मिर्जापुर पंचायत का एक पिछड़ा हुआ गांव है, और उस गांव का एक साइड में झील है, उधर में कोई रास्ता नहीं है। बरसात के समय में वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रास्ता में कम से कम घुटना भर कीचड़ रहता है। इस बार भी मैं जब सोशल वर्क के लिए निकलता था बाइक पे जाते, तो जब बारिश होता था 2-3 बार तो मैं गिरा ही कीचड़ में, फिर घर जाकर के कपड़े बदल करके फिर निकला। और इस बार तो एक ऐसा हाल हो गया कि मतलब एक पेशेंट थी, डिलीवरी पेशेंट, उनको चारपाई में करके ले करके रोड तक पहुंचाने के बाद फिर गाड़ी में गया यहाँ पर। तो कमरुल हज़ा साहब जब आए थे हमारे गांव में वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो सबसे पहले मैं इस गांव का ये रास्ता का काम करना। और बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, वो 500 मीटर का लगभग है वो रास्ता। तो मैं और कुछ लोगों को लेकर के कोठिया के भोला थाना पंचायत में एक मुखिया के यहाँ उनका प्रोग्राम था, तो मैं अपना एक आवेदन लिखा और लिख करके मैं कुछ लोगों के साथ गया उनके पास, और सारा बात कही उनके सामने में कि आप गए थे, आपका सारे बातों से आपको अवगत कराया था मैंने, और आपने कहा था कि कुछ करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरा तो सरकार नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ, अभी फंडिंग भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1-2 हज़ार रुपये चंदा देता हूँ, आप लोग चंदा करके करिए, या फिर मैं कोशिश करता हूँ। मैं आ गया कि चलो मैं कुछ दिनों के लिए बने हैं और नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, आगे देखा जाएगा। ठीक 1.5 महीने के बाद उस गांव के पास में और एक महानपोखर गांव है जहाँ आबादी थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे जाकर के एक रोड का उद्घाटन करते हैं और वहाँ पे रोड बनाते हैं, जबकि उनके साथ वो समस्या नहीं है जो हमारे साथ है। तो मुझे लगा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, क्योंकि संविधान में आपका भी कई इस बीच में मैंने सुना है और संविधान में भी है कि विकास तब तक नहीं माना जाएगा देश का जब तक वो आखिरी आदमी तक विकास नहीं पहुंचेगा जो विकास से महरूम है, और वो आखिरी आदमी में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। एक बात तो सही है कि कमरुल हज़ा साहब अगर दूसरी जगह काम कर रहा है तो आपके पास पहले करना था, क्योंकि आपको ज़रा जरूरत थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि कमरुल हज़ा साहब को बहुत ही कम टाइम मिला, 5 साल का टाइम नहीं मिला। अगर 5 साल का एक टेन्योर मिलता तो मैं समझता हूँ कि वो एक एमएलए को जज करने का एक अच्छा टाइम होता है। 1 साल का उनको टाइम मिला, और मेरा मानना ये है कि उसको लोग समझ रहे थे कि 1 साल में 5 साल का काम करेंगे वो इम्पॉसिबल है। तो कमरुल हज़ा साहब से ये जो लोगों की उम्मीदें थी कि वो 1 साल में पूरे काम कर देंगे, वो कोशिश किए जरूर। बाई नेचर बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनको जानता हूँ, बहुत उनको टाइम नहीं मिला। और आपका बोलना सही है कि वो जहाँ पहले प्रायोरिटी में जरूरत थी वहाँ काम करना था। मगर अब देखिए वो इलेक्शन हुआ, आपने
जनता ने उनको बना दिया, वो भी इलेक्शन चुनाव हार गए। मगर हमारी लड़ाई जो सीमांचल की लड़ाई है वो मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। सीमांचल के ताल्लुक से मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल को पेश किया कि आर्टिकल 371A के तहत वहाँ पर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इलाके की डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बनता है, उसका इस्तेमाल होना। मैंने एक ने 2 मरतबा बिल को पेश किया। सीमांचल लड़ाई, मेरा मानना है कि सीमांचल भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, हर तरह से सोशली, एजुकेशनली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर एतबार से। तो हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है और उसमें कोई हम मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना किसी और, बल्कि पूरे सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि भारत के जो आज़ादी की लड़ाई में जो नवाब लोग थे, देखिए जितने नवाब लोग थे तो पाकिस्तान भाग गए। निमाम आप कौन से नवाब लोग की बात करें, जितने पढ़े लिखे लोग थे, दौलतमंद लोग, तो भाग गए। मगर उन्होंने आज़ादी जो ठहर गए यहाँ पर, और यकीनन जैसा कि आपके पास वो अभी जो स्कूल्स का नेटवर्क है किशनगंज में, वो भी तो एक आज़ादी, मुजाहिद आज़ादी ने शुरू किया था। जब भी प्रेसिडेंट MP साहब की दादा थे, वो नाम याद नहीं आता। मगर देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कहा हूँ कि लखनऊ के रिफायाम क्लब में आज़ादी के 1 साल 9 साल के बाद बड़े बड़े मुस्लिम लोगों ने ये फैसला लिया था कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल आवाज़ नहीं होगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत फैसला था, वो फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर रिफायाम क्लब में वो फैसला नहीं लेते यार, तो कम से कम इतने बुरे हालात तो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं होते। और ये हालात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपके पास डेटा है, डेटा तो झूठ नहीं बोलता। 2011 का सेंसस है, NSSO का डेटा है, कई सत्तर तो पुरानी हो चुकी है, हिंदू कमेटी लेटेस्ट है। ये जरूरी है आपको इस कम्युनिटी को अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, अपने पॉलिटिकल वॉइस की। और ये मत समझिए कि हमको सत्ता में आना है। सत्ता में क्या, सत्ता में तो नहीं मिला ना। थोड़े दिन अपोजिशन करने के लिए आवाज उठाइए और लड़ना पड़ेगा। यकीनन गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। मगर आप मुतमईन रहिए कि जहाँ तक किशनगंज और सीमांचल की बात है, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह सरकार से। उनसे जाकर मिलेंगे भी, मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से, उनको रिप्रेजेंट भी करेंगे। और जब नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल चक्का जाम करेंगे सीमांचल को। ठीक है, पूरा मैं खुद जाकर खेलूंगा। ये तो उसको डेवलप करना जरूरी है। अब देखिए नीतीश कुमार सब जगह गए, शराब आया, जमीन कटती है, यहाँ नहीं आते, यहाँ चाहिए ना उनको। भाई सीमांचल में किशनगंज नहीं है, कटिहार है, अररिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का वहां से। आपका एयरपोर्ट का मामला, जमीन नहीं मिलती सरकार, उसको पार्लियामेंट में उठाए। एयरपोर्ट की जमीन भी चाहिए, पुरलिया में ताकि एयरपोर्ट बने। तो ये इश्यूज को हम कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं। देखिए आगे कामयाबी की जरूरत है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पार्लियामेंट में कानून बना दिया। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता। तो बीजेपी ने यही सबसे बड़ी गलती की और ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई होगी, कोर्ट इसको सुनेगा, तो मुझे यकीन है कि कोर्ट भी उसको ये कहकर खारिज करेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मेरा मानना है।
अब तो देख रहे हैं किसान पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है और पूरे जोर शोर से लोग समझ रहे थे कि 1-2 महीने के बाद लोग बैठ ठंडे पड़ जाएंगे, घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब करीब 1 साल होने आ रहा है और मुझे लगता है कि ये बात और आगे बढ़ेगी, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इस कानून के तहत, इस लॉ के तहत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर जो किसानों की जो ताकत है, जो किसानों का काम है, वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चला जाएगा और वो हमारे मुल्क के लिए बड़ा खराब दिन होगा। तो ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि वो प्रोटेस्ट अपना जारी रखे और ये सरकार को होश आए, मगर ये सरकार अभी सुनने तैयार नहीं है। शायद और प्रोटेस्ट बढ़ेगा तो इनको समझ में आएगा। सर, आपसे पहले पूछना है, आपके पास कितना और समय है? 2-3 सवाल साथ में लें। हाँ, तो आप मेरे को 12:30 तक छोड़ दीजिए। तो फिर 12:25 तक हमें क्वेश्चन आंसर कहूँगा। हाँ, तो आप 12:30 तक कर लीजिए, फिर वीडियो बाइट कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं 3 सवाल लेने वाली हूँ, जल्दी से हाथ ऊपर कर दो। मैं डिसाइड करूँगी कौन से 3 सवाल है, उसके बाद मैंने ये काफी क्वेश्चन है। तो ठीक है, मैं आकांक्षा सवाल मैं एकदम छोटा सवाल होगा, ठीक है? छोटा सवाल था बस, तो क्वेश्चन सर की तारीफ मत करना, अलग से कर लेना। सवाल सर नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं धार जिले के कुक्षी तहसील से हूँ। मैं आपकी 2 बातों से सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि आदिवासी समुदाय जो है उसको पीछा रखते हैं और अगर कोई पॉलिटिकल व्यू में अगर आना चाहता है तो उसके बैकग्राउंड में ये शंका जाता है कि वो उसके पास पैसा वगैरह है या नहीं है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसे समुदाय से हूँ, समाज से हूँ, तो अगर ऐसी चीजें अगर हमारे साथ हो रही है तो आप उनको किस नजरिए से देखेंगे और आप हमें उसके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आपके नजरिए से हमारे आदिवासी समुदाय को आप क्या देखते हैं? और अगर मैं मेरे आदिवासी समुदाय के लिए अगर खड़ा होती हूँ, उनके हक के लिए खड़ी होती हूँ, तो मैं उन सभी वंचित समुदाय के लिए खड़े होना चाहती हूँ जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं। मैं सिर्फ मेरे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं खड़ा होना चाहती, मैं उन सभी वंचित समुदाय के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं खड़ा होना चाहते थे समाज के लिए? जी, क्यों अपने समाज के लिए खड़े होना चाहते हैं? क्योंकि सर हमारे समुदाय को मतलब बहुत पिछड़ा हुआ रखते हैं, बहुत मतलब पीछे ही रखते हैं। नहीं, तो मैं आपको एक मैं तो आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये इसको निकालिए दिमाग से, खड़े रहिए अपने समाज के लिए। क्या बुरी बात है? क्या कयामत या आसमान गिर जाएगा? एक इलेक्शन हारेंगे, दूसरा जीतेंगे, तो इसमें आपको प्राउडली बोलना पड़ेगा कि मैं इस समाज के लिए आती हूँ और इसके इंसाफ के लिए लड़ूंगी, इसके लड़ना चाहती हूँ, ताकि जब मेरे इस आदिवासी समाज को इंसाफ मिलेगा तो भारत की पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और बजाय कोई गूंगा जीतने के कोई बोलने वाला जीते ना, तो इसमें शर्माइए मत। इसमें हरगिज आप अपने दिमाग से, मैंने वो आपके ऊपर है, मगर इसको आपको बिल्कुल वो दिमाग में रखिए मत। बात अपनी बात को फर्मली रखिए। आप किसी और समाज के खिलाफ तो नहीं है ना, नहीं है ना? हाँ, तो बस बुरी बात क्या है? आप बाद में देखते हैं ना, जब मैरिज का प्रपोजल आता है तो हर समाज वाले अपने ही समाज की बेटी या बेटी को देना चाहते हैं, तो वोट डालते सब ऐसे ही होता है। ये सब नाटक है। मैं बता रहा हूं आपको, जब पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है तो उसमें देखती है कि धार डिस्ट्रिक्ट में कितना आदिवासी वोट है, उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितना वोट है, उसको देखकर वो समाज को टिकट देते हैं। देते नहीं देते? देते हैं ना। तो फिर आप क्यों शर्मा रहे? आप बिल्कुल हिम्मत से काम करिए। आप यहाँ से आपकी बहुत बड़ी जिंदगी है इंशाल्लाह। आप हिम्मत से काम करिए, आवाज उठाइए। देखिए, जिसको इक्वालिटी के माने गया संविधान में, लोग बोलते इक्वालिटी फॉर ऑल, नहीं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, इसको बोलना पड़ेगा। भाई अगर ये हम और एक हो जाएंगे और ये मुझसे ज्यादा कमजोर है
तो इनको तो मुझसे ज्यादा इक्वालिटी की जरूरत है। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की जरूरत है आदिवासियों को, दलित को, मुसलमानों को। इक्वालिटी फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट नहीं है संविधान में, सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। और वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी के लिए ही आपको पॉलिटिक्स में जाकर लड़ना चाहिए, बनना चाहिए, वो करना चाहिए। तो पहला सवाल क्या था आपका? अरे हाँ हाँ ठीक है, कब 2 बातों से सहमत हो गया आप। शुरुआत करो। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अभी तक आपने जितनी भी बातें की, मैंने बहुत सारे ऐसे अन्य जो सवाल थे उनको सबका मुझे जवाब दिया कि हमें कितना भी किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपोजिशन में क्या लाइन नहीं, चाहे हम अपनी पार्टी के साथ भी अगर किसी थोड़ा जोर से माइक पास कर लीजिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं आपकी तमाम बातों से, मेरे पास सवाल बहुत थे, लेकिन आपने एक एक करके जब अपने आप ही बताया तो मुझे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं कितना भी किसी के लिए कर लूं, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं किसी मुस्लिम की शिकायत लेके पहुंचती हूँ तो मुझे उसके साथ जोड़ दिया जाता है, और अगर मैं किसी नॉन मुस्लिम की शिकायत लेके पहुंचती हूँ तो उसको कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब कहने का ये कि मुझे उस टाइम ज्यादा हाईलाइट करना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूं, जैसे मुझे घर में और हर जगह मुझे इस चीज पर रोकते हैं लोग कि तुम इतना बेबाक मत बोला करो, वो इतना बड़ा कह दिया, वो ऐसा है। इस चीज पे मुझे अक्सर रोकते हैं। मोदी जी के लिए भी कुछ भी मत बोला करो। मोदी बोलिए कुछ क्या? अभी मुझे बड़ी इंस्ट्रक्शन दी जाती है इस चीज पे। तो मैं ये पूछ रही थी, आप अपने आप को सेफ कैसे रखते हो? मतलब हम लोग अगर कुछ भी कहते हैं तो फौरन हमारे पर एक्शन हो जाता है, ट्वीट भी करते हैं तो एक्शन हो जाता है, कुछ भी करते हैं। आर यू सेफ कैसे? मतलब इस माहौल में कैसे आपको छोड़ रखा है मोदी जी ने? नहीं, मुझे छोड़ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास, दूसरों के पास बहुत बड़ा उनका पाप का घड़ा बहुत सालों से भरा पड़ा था, तो उनको मालूम था उसको निकाल रहे हैं। मेरे पास अभी तक तो कुछ है ही नहीं। तो मगर देखिए आप जब समंदर में कूदते हैं ना, तो कभी गहराई से शिकवा मत करिए, या मत कूदिए समंदर में। वही साहिल पर बैठकर पैर डाल के बोलिए पानी इतना अच्छा है। और भाई जब तूफानों से मुकाबला करना है तो समंदर में कूदना पड़ेगा। और जब समंदर में कूदते हैं तो हवा के साथ भी, हवा के खिलाफ भी जाना पड़ता है। और सेफ्टी की जो बात है, क्या मुझे भी शौक है जिंदा रहने का। मुझे भी, मेरे घर में फैमिली है, बच्चे हैं, बेटियां सब है, मगर मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला तो कोई नहीं, ऊपर वाला है। जिस दिन मेरा टाइम आएगा मैं जाऊंगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर लाख आपके पास सब चीजें हो, देखिए मैं जानता हूं जो कोविड की सेकेंड वेव आई, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं करोड़पति लोगों को जानता हूं जिनको बेड नहीं मिला। करोड़पति लोग, मेरे से लोग बोले कि सर हम लोग 30-30 लाख रुपए लेकर गाड़ी में कर रहे थे, बेड नहीं मिला। और जब ये बात सही है कि सरकार जो है ये मौजूदा सरकार ने इस बात को पैदा कर दिया हमारे दिलों में, अरे तुम क्यों जाती हो, तुम क्यों शाहीन बाग में, तुम क्यों प्रोटेस्ट करे, तुम्हारी फोटो आ जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। ये तो जरूरी है, होगा ना। फिर अगर सब घर में बैठ जाएंगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? नाइंसाफी के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? तो किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है। और ये संविधान में हमको इस बात की इजाजत है। यकीनन तकालीफ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मगर अभी इन्होंने कहा था कि जो संविधान, जो हमारे भारत की आजादी की लड़ाई लड़े थे, उनको क्या जवाब देंगे हम लोग? आप और हम मरेंगे ना, कि मुसलमान है, हमारा ईमान ये है कि मरने के बाद अल्लाह सबको जमा करेगा, हिसाब किताब करेगा। उस दिन अगर वो मुजाहिदीन आजादी की आंखों में आके आप डाल के देख सकेंगे आप, कि जो वो बोलेंगे कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी थी। बहादुर शाह जफर भी होंगे, पहले
जौहर बरदरान होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे, जब क्या नाक काट डालेंगे? जिंदा रहने के लिए जिंदगी का सबूत तो देना पड़ेगा ना। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, भाई मुर्दा बन के जिएंगे, तो वो तो जुल्म करने वाला बोलेंगे तो छोड़ो, तो मुर्दा है, छोड़ो उसको। जो जिंदा रहता है उसी के खिलाफ जालिम पीछे पड़ता है, मुर्दों के खिलाफ जालिम पीछे नहीं पड़ता। उसको मालूम ही मुर्दा है, इसको फिक्र नहीं है। तो ये काबिलियत है, आप जिंदा है इसीलिए आपके पीछे है। जो मुर्दार है, जिनमें कुछ नहीं है, जो हरकत नहीं कर सकते, जो जिंदा लाश भी नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कोई नहीं पड़ता। तो जो जिंदगी और हरकत करते हैं उनके खिलाफ जालिम जाता है। तो हिम्मत से काम करिए। और देखिए, मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा है ऊपर पर मुझे इतना तो मालूम कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं कोशिश करता रहूंगा, ताकि जब इस दुनिया से चला जाऊंगा या कभी बूढ़ा होऊंगा, जब तो कम से कम ये तकलीफ तो नहीं होगी कि यार मुझे कुछ करना चाहिए था, मुझे मैं नहीं किया। तो ये आपकी जिंदगी, आप तमाम की जिंदगी के ये प्राइम ईयर्स हैं। और भी इंशाल्लाह आपके कम से कम 60 साल तक, इंडिया में तो अगर 70 साल में भी पॉलिटिशियन जवान रहता है, बुरा किसी को नहीं करते वो आप, बट ये आपके प्राइम ईयर्स है। इसको जाने मत दीजिए। ये इस उम्र के हिस्से को अच्छी तरह इस्तेमाल करिए, इसको पूरा टाइम लगाइए जिस कॉज में आप जा रहे हैं, तभी जाकर आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अरे यार चलो 90% तो लेंगे, 10% तो मिला हमको। तो ये तो लगावा है। अभी ये मौजूदा, लेकिन कल अगर इंशाल्लाह कल मोदी हार गया और हारेगा इंशाल्लाह, तो आपकी समझ रही है आपका जान का खतरा कम हो जाएगा? नहीं होगा, रहेगा। क्योंकि इस मुल्क में जो कम्युनलिज्म अनफॉर्चुनेटली फैलाया जा चुका है, उसमें क्या करेंगे? अभी वो तालिबान वहां गवर्नर बना, तो उसका इम्तिहान हमारे प्रेसिडेंट से, वो कैसा बना है तुम बोलो। अरे मैं क्या बताऊंगा यार, वो वहां बना लिया तो टेस्ट, वफादारी का टेस्ट हमसे पूछते हैं। अरे वो बनाया तो मैं क्या करूं? तो हर चीज का तो ये माहौल है। मगर हिम्मत से काम करिए, हौसले को बुलंद रखिए और पूरी कोशिश करिए अपनी जान बचाने की। यकीनन कोशिश करना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई सुनता है तो फिर वो तो फिर लिखा हुआ है मामला, उसको रोक नहीं पाएंगे आप। मगर देखिए, पॉलिटिक्स is a journey of uncertainty also. Politics is a journey of uncertainty also. Politics is a risky thing, जो कोई आसान काम नहीं है। और खासतौर से इस वंचित समाज के लिए तो बहुत ये तो देखिए, मेरे को याद आ रहा है वो जुमला, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था एटले और शायद चर्चिल था, तो जब सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ तो इन दोनों में से किसी ने कहा कि what a time to fight that. This is the time to fight that. ताकि 50 साल के बाद लोग आप लोगों को याद रखेंगे कि भाई कोई तो उठा था, कोई आवाज उठाया था हमारा। लोग जो है लड़ने वालों को याद करते, लोग मुर्दार को याद नहीं रखते, याद रखते। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश है। पूर्व में हमारे साथ एक स्पीकर थे आम आदमी पार्टी के, तो वो जब उन्होंने हम इसी बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये नेशनलिज्म और रिलीजन वाली पॉलिटिक्स का ग्राउंड हम बीजेपी और ऐसे दलों के लिए खाली नहीं छोड़ सकते। वो लोग उन्होंने मैदान को उसी तरीके का बना दिया है, और अगर हमें सिस्टम के अंदर जाना है तो हमें भी उसी मैदान पर क्रिकेट खेलना पड़ेगा जिस पिच को आज बीजेपी बीच में लेकर आ गई है। तो दिक्कत यही है कि और अगर हम नहीं करें तो चलिए ठीक है कि हम विपक्ष की आवाज बनकर जिस तरीके से जो संघर्ष का रास्ता आप आज हम सभी को बता रहे हैं, उस संघर्ष के रास्ते को करते रहे, लेकिन हम सिर्फ अपनी ट्विटर की टाइमलाइन को संघर्ष सकेंगे, सड़कों पे देख सकेंगे, हम सिस्टम के अंदर नहीं जा पाएंगे, और सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे तो चीजें वही ऐसी ही होती रहेंगी जैसे ये लोग चाह रहे हैं। तो देयर इज नॉट ओनली अ सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, देयर इज अ बायर टू, ऐसा कोड था आपका, क्योंकि ये प्रोडक्ट जनता खूब खरीद रही है। और असल ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा है कि जब मैं सीएनआरसी के प्रोटेस्ट कर रहा था तो मैं अपने शहर में ठीक ठाक वैलिडिटी और वर्क वाला आदमी था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में खूब जोर शोर से फायरिंग तरीके से आंदोलन को यूनाइट करा, अगले ही दिन से मेरी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हुई शहर से, मुझे लोग ही भावना से देखने लगे।
मेरे लिए चीजें बहुत कठिन हो गई जिससे मैं अभी तक उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सर आप इस डिलेमा को कैसे खत्म करने की कोई सुझाव दे सकते हैं कि वेदर हमें संघर्ष के रास्ते से सिर्फ सड़कों पर ही टिकना चाहिए या फिर हमें चुनावी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी में भी आना पड़ेगा ताकि हम पॉलिसी फॉर्मेशन भी कर पाए, वरना ये लोग तो अपना दुकानदारी बेचते रहेंगे और लोग खरीदते भी रहेंगे और ऐसा काफी समय से होता रहा है। मैं अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपसे कहा था कि इफेक्टिव अपोजिशन के लिए आपको जनता को बताना पड़ेगा कि आप मुझ में और आप में फर्क क्या है। फर्स्ट करिए आप वोटर हैं और हम दोनों कैंडिडेट हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई हम दोनों अलग हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो क्यों वोट देंगे आपको, बोलेंगे भाई वो क्लोन से अच्छा तो ये है। डिफरेंस क्या होगा? आप जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे तो आपके लोगों से पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं बोले, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास पुलिस नहीं है। भाई मेरे पास जबान तो है ना, दिमाग तो है, तो बोल तो सकते हैं आप। फिर मुल्ले काटे जाएंगे पार्लियामेंट के 10 मिनट के फासले पर, तो आप एक जबान से नहीं बोलते। आप उत्तराखंड जाकर इसको बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। आप इलेक्शन जीतते हैं 83% मुस्लिम वोट से, 2 इलेक्शन, और आप बोलते हैं कि मैं मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। फिर मैं क्या करूं भाई, मैं भी तो वोट दिया ना आपको। तो ये सिस्टम में जाने के लिए कर रहे हैं आप, तो फिर सिस्टम तो वही रहेगा ना। हम आपको क्या बोल रहे हैं, भाई सिस्टम को इंक्लूसिव करिए ना। आप ये बोलिए कि मैं ममता बनर्जी ने क्या कहा था, मेरा गोदरा ये। अचानक 10 साल के बाद गोदरा कैसे याद आ गया ममता बनर्जी को अपना? अगर उनका गोदरा है तो मैं तो गोदरा में आता ही नहीं, मुसलमान, फिर क्या करूंगा मैं? फिर सिस्टम में जाना है। अरे भाई सिस्टम में जाने का क्या, फिर आप में और आप अपोजिशन है ना बीजेपी की, तो आप में बीजेपी में क्या फर्क रहेगा? और आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करते ये लोग, याद रखिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई कि जीतना है हमको सिर्फ। जीतने के बाद आपने क्या किया बताइए? आपने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मेरा फिर पलट के मुसलमान, दलित, आदिवासी को अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत है। आप सत्ता में नहीं आएंगे मगर कम से कम आप लड़ेंगे, आप आवाज उठाएंगे। और हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा होता नहीं माँ उसको दूध नहीं पिलाती। आपने एक बात कही थी कि सब भारत में सब एक है, आपने कहा बिल्कुल सही है, सबसे नाइंसाफी होती। मगर फर्क ये है कि जब मुसलमान और आदिवासी होता है तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, दूसरों के कोई आंसू पोंछता है। काम दोनों का नहीं होता, उसी को वही लिखती है, कम से कम उसका हाथ कोई पकड़ लेता, बेटा तेरा काम करेंगे। या हमारा हाल ऐसा हो गया कि आंसू इतने निकल चुके हैं कि अब तो आंसू भी निकलना छोड़ दिए। तो ये सिस्टम में जाने की बात कि क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम है ये? तुम तो धोखा दे रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। फिर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों हार गए? आप पार्टी वाले एक भी नहीं जीते ना, एक भी नहीं जीते। उसकी वजह क्या है? तो ये डिफरेंस पैदा करना जरूरी है आपको कि हम ये हैं और वो ये हैं। अगर आप लोग एक हो जाएंगे तो याद रखिए 24 में भी ऐसी हो जाएगा। फिर एक आदमी और दूसरे सब सामने रहेंगे, वो बोलेगा देखो मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, अब बताओ तुम क्या है, बताओ तुम क्या करोगे। 370 का आपने अपोज किया ना। जब दिल्ली में कानून बना तो चीफ मारना शुरू कर दिया। क्यों चीफ मारा आपने? तो हमारे पावर स्थिति वहां पर क्या हुआ था? तो ये जो हिपोक्रेसी है इन लोगों की, ये समझ नहीं रहे हैं। आप रूलिंग पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। वो जो खेल रहे हैं ना उनको आप मजबूत कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हमारे वालिद साहब मरू हमको पॉलिटिक्स सिखाया, बोले कि 2 चीजें पॉलिटिक्स क्या है, सही वक्त पर सही फैसला लेना, और दूसरा क्या है कि कभी भी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के घर जाकर नहीं लड़ना, उसको घर से निकालो। अगर मैं आपके घर पे जाकर लड़ूंगा तो आप मुझे इतना पछाड़ेंगे कि मैं फिर लड़ने काबिल नहीं होगा। मेरा काम ये होना चाहिए कि आपको आपके घर से निकालकर यहाँ लाना चाहिए, यहाँ रहो।
मैं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लड़ूंगा। भाई विराट कोहली को अगर आप आउट स्विंगर डालेंगे तो ही कल आउट होगा ना। अगर विराट कोहली को आप डालते रहेंगे तो दिन भर चौके छक्के मारता रहेगा वो। तो ये इनको समझने की जरूरत है, ये बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। ये आप पार्टी में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। ये बेवकूफ बनाने की बात है सिस्टम में जाने के लिए। तुम सिस्टम में चलेगा तो क्या करें? सर लेकिन जनता भी अपने हिस्से की क्रांति कर रही है, वो समझ जनता देखिए, जनता आज साथ है, उस सोच के साथ है, मगर हमेशा तो साथ नहीं रहेगी। जनता अब परेशान हो रही। जनता अब देख रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जनता देख रही है कि नौकरी नहीं है, जनता सब परेशान हो रही है। इसीलिए इंडिया टुडे का जो सर्वे आया मूड ऑफ द नेशन, देखा आपने सबने उसको, आपने देखा उसको, आप गांव में देखा, क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। उस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कहा गया कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो 75% की 45 में आ चुकी है। कभी नहीं हुआ ऐसा 2014 से। जनता भी देख रही है, जनता भी थक आ रही है कि कब तक ये बेवकूफ बनाएंगे हमको। तो जब क्या करेंगे आप? जब बोलेंगे हाँ अरे भाई दिल्ली चल रहा है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको एरिया में फिरना चाहिए था कि लोगों से अपील करते। मगर आप क्या किए? गांधी की समाधि पर जाके मौत पर हम बैठ जाते। ये काम है आपका। आपका तो काम है जाते मुस्लिम इलाके में मुसलमान पत्थर फेंकते, कोई बात नहीं, मारो मेरे को, मत एक दूसरे को मत मारो। हिंदू एरिया में जाते बोलते कुछ मत करो, मैं बचाऊंगा आपको। आप कुछ नहीं करते। आप बोलते पुलिस मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वोट तो लेंगे फिर आप मुझसे। तो ये देखिए, आपको डिफरेंस पैदा करना जरूरी है, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो। आप डिफरेंस नहीं पैदा करेंगे तो रूलिंग पार्टी को फायदा होगा। Thank you so much, sir, for the on this. Namaste, sir. Thank you for coming.